Hello students, so this is going to be a lecture on circular motion, and this is the third one and probably the last one. If I have left any topic, just tell me in the comment section and I can cover it in another video, right? And if you have any doubt, you can comment and I'll explain right then and there under the comment, or I can if it is a big doubt, I'll make a video and upload it. Okay, so okay, let's start. So this topic is effect of Earth's rotation on apparent weight. So apparent weight of a body. Apparent weight of the body. Okay, why apparent weight? Why apparent weight? Because of rotation of the Earth. Okay, so let's say this is Earth rotating about its axis. Alright, omega. Okay, so its axis is basically inclined in reality, like you can see in globe. Okay, so its inclined axis is shown here. So what I'm going to do, I'm going to assume that this inclined axis is actually vertical, right? So you'll be seeing on the board the vertical axis. Now one more thing I have already explained earlier as well. If we'll consider a point on the equator, so this is the equator, right, just in the middle. Okay, so if we'll consider the point on the equator, it is going to rotate on the circular path, with the radius of that circle being the radius of the Earth at the equator, right? So radius of the Earth at the equator and at the poles are different, right? So if you will consider any point between the equator and the pole, right? So it is going to rotate again on a circular path, but on a smaller radius than the radius of Earth at the equator. In general, radius of Earth is taken as how much? 6400 kilometer, right? So that's fine, you'll understand in gravitational chapter. Okay, so now let's just assume a particle here, somewhere here. So as I said, if this is the equator, this is the pole, any circular path between them is going to have a smaller radius than the radius of the Earth, and this is the radius of the Earth. And let's assume, okay, this is the angle theta, okay, and this radius of the circle is smaller. You can easily calculate कि small r की value capital R के एक term में ये capital R है, right, the radius of the Earth. So this is r cos theta is going to be this thing, just take component, and r sin theta is going to be the small r. So small r is equal to r sin theta. Alright. Now what I am going to do is, in the last lecture I have explained what is pseudo force, right? तो pseudo force हमने पढ़ा था टू केसेस में. इन वन केस जहाँ पे रोटेशनल फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यू अंडरस्टैंड. नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल या रोटेशनल फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, बट इनर्शियल फ्रेम में आ जाओगे आप तो वही ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन करने लगेगा, इट वोंट बी एट रेस्ट, ठीक है. तो व्हेन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम और एक्सेलरेटिव फ्रेम और रोटेशनल फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस पर एक स्यूडो फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. बट इफ नॉन इनर्शियल फ्रेम में या फिर और इनर्शियल फ्रेम, सॉरी, और एक्सेलरेटिव फ्रेम, ओके, और रोटेशनल फ्रेम, दे ऑल आर सेम. नॉन इनर्शियल, एक्सेलरेटिव एंड रोटेशनल फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो देयर विल बी टू स्यूडो फोर्स. द अदर वन इज कोरियोलिस फोर्स एंड द अदर वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, राइट. यहाँ पे मान लो एक रूम पे, आपके रूम में सीलिंग से कोई एक स्ट्रिंग से कोई एक ऑब्जेक्ट एम का मास उसका m है, एक स्ट्रिंग में से सीलिंग से आपने ऐसे हैंग कर दिया,
ठीक है। सो अगर आपने हैंग कर दिया तो रेस्ट पे है, राइट। देखो अर्थ को हमेशा इनर्शियल फ्रेम माना जाता है, ठीक है, रेफरेंस मान लिया जाता है कि अर्थ इज नॉट रोटेटिंग, ठीक है, तभी तो हम सारा क्वेश्चन करते हैं। बट यहाँ पे हम अर्थ को नॉन इनर्शियल फ्रेम मान के हम ये कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द अपैरेंट वेट इफ वी कंसीडर अर्थ एज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, दैट मीन्स रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है। तो वैसे तो ये रेस्ट पे है, ठीक है, आपके हिसाब से mg कहाँ लगना चाहिए, ऐसे mg, but this mg is you have got by considering earth to be inertial frame, right? If you consider earth to be non-inertial frame, that means rotational frame, then this is not going to be its value, there is going to be some apparent weight, so mg dash, so that g dash we are going to find out, okay. We are going to derive for general expression for g dash, and then we are going to see what is the apparent weight at the equator and what is the apparent weight at the poles, right? So what are the forces that will act if you will consider this particle mass m at this point p और इसका सेंटर c है। अगर ये लेबोरेटरी के फ्रेम सॉरी आपके रूम में या लेबोरेटरी में ये मास है तो अर्थ के किसी लोकेशन पे होगा ना, तो वो लोकेशन हम ये पी पॉइंट पे मान रहे हैं, एम का जो हैंग किए वो उसका लोकेशन अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रोटेशन मान रहे हैं, अर्थ को रोटेट करते हुए, ठीक है, इस पी पे मान रहे हैं, जो कि पोल वाली लाइन से रोटेशनल एक्सिस से, अर्थ के रोटेशनल एक्सिस से कितने पे एंगल पे है, थीटा। अगर थीटा है तो पी पे जो mg लगना चाहिए, एक्चुअल mg, अपरेंट वन नहीं, जो आप कहते हो mg, वो mg किस डायरेक्शन में लगेगा, रेडियल डायरेक्शन में, राइट। आप कोई भी चीज रखोगे किसी जस्ट अर्थ के सरफेस पे, मान लो दिस डस्टर इज ऑन द अर्थ, राइट, इसका वेट हमेशा ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड मानते हो ना, दैट वेट इज एक्चुअली एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। सो ये हो गया mg, यहाँ से r में हटा के यहाँ ये हो गया mg। नाउ स्यूडो फोर्स, अर्थ एक रोटेटिंग फ्रेम है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा आपने mg का, उस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा, क्या, m ओमेगा स्क्वायर r, और उस स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जिस सर्कुलर पाथ पे वो रोटेट कर रहा है उसके सेंटर से अवे c टू p, ये सब मैं बता चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में, m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, लेट मी राइट r डिफरेंटली, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r। देयर इज वन मोर फोर्स ऑन दिस होल सिस्टम, ये ऑब्जेक्ट तो हमने यहाँ मान लिया, लेकिन ये एक्चुअली में एक स्ट्रिंग से बंधा है ना, तो उस पे क्या लगेगा, टेंशन T, ठीक है। अब जो ये mg डैश लग रहा है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद आते हैं, ठीक है। अब देखो अर्थ पे आप हो, अर्थ भले ही रोटेट कर रही है बट यू आर द ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर आ गए किस पे, अर्थ पे, इसके रोटेटिंग फ्रेम में आप आ गए, तो आपको ये मास मूव करते हुए दिखेगा नहीं, जिस रोटेटिंग फ्रेम में मास है उसी में तो आप भी हो, राइट, यू आर ऑल्सो ऑन अर्थ, ठीक है, यू हैव हैंड्स ऑल्सो, ठीक है। तो आपको रेस्ट पे दिखेगा, हाउ कैन दैट हैपन, मैंने पिछले लेक्चर L02 में मैंने बताया था कि दैट नेट फोर्स शुड ऑन दैट ऑब्जेक्ट शुड बी जीरो। तो नेट फोर्स किस कौन कौन सा तीन फोर्स है, mg, m ओमेगा स्क्वायर r, तीसरा कौन सा, स्ट्रिंग का टेंशन, तीनों रेस्ट पे सॉरी तीनों का जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, राइट। तो पहले हम m ओमेगा स्क्वायर r और mg का रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींच दो, ये भी थीटा होगा, ये कितना है 90, एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेज आर हाउ मच, ये m ओमेगा स्क्वायर r और ये क्या है mg, दिस इज 90 प्लस थीटा, निकाल लो, सिंपल फॉर्मूला, राइट। रिजल्टेंट फोर्स का r की वैल्यू पता है ना, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर या f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, निकाल लो यहाँ से, mg स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mg m ओमेगा स्क्वायर r cos 90 प्लस थीटा इज हाउ मच, बताओ,
माइनस साइन थीटा, राइट? ठीक है, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। यहाँ लिख देता हूँ पहले cos 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला डायग्राम जस्ट टेक अ मेंटल पिक्चर। आई एम गोइंग टू यू नो erase this. Do I need it? Yeah, I will, but I'll draw again. It's just very simple diagram. Okay. ठीक है, this one also. Okay. और यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R sin थीटा लिखा जा सकता है, राइट? तो यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में mg होल स्क्वायर प्लस रखो m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और वहाँ पे माइनस साइन थीटा, राइट? और यहाँ पे भी स्मॉल r की जगह कैपिटल R साइन थीटा रखोगे तो वहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको पेन एंड पेपर से करना, डोंट जस्ट डू इट। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले सकता हूँ, होल स्क्वायर, या फिर मैं यहाँ कैपिटल R स्क्वायर करके कैपिटल R करके होल स्क्वायर और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, राइट? दैट मेक सेंस, राइट? R की जगह मैंने कैपिटल R साइन थीटा रखा, कैपिटल साइन थीटा को बाहर कर लिया, और यहाँ पे आ गया माइनस 2 m स्क्वायर, या फिर हाँ m स्क्वायर g ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा इधर से है, एक साइन थीटा यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे तो ये अंदर क्या बचेगा, और m भी कॉमन आ सकता है ना, m बाहर आया रूट के, तो आपके साथ क्या बचा अंदर, g स्क्वायर, ठीक है, माइनस m g भी कॉमन हो सकता है, राइट? यस ऑफ कोर्स। तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस समथिंग, अच्छा नहीं, g कैसे कॉमन होगा, यहाँ पे g नहीं है, राइट? तो अंदर क्या बचा आपका, m स्क्वायर कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, let's just do it, m ओमेगा स्क्वायर r g ट्वाइस का, राइट? इतना ही तो बचा, माइनस यहाँ पे m स्क्वायर बस कॉमन है, ओमेगा टू द पावर 4 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? लेट मी रेज दिस। ऑलराइट, यहाँ पे जो कैपिटल R रिजल्ट, oh there is one more thing, so let me just assume that this resultant force is r dash, because capital R I am taking radius of the earth as well, right? ठीक है, तो यहाँ पे इसको m इंटू जी डैश लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज अंदर जो लिखा है ये एक्सीलरेशन ही है, ठीक है, इसकी यूनिट एक्सीलरेशन ही होगी, राइट? सो yeah, all right, now what is g dash? G dash is the new gravity, that g dash is value of, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा, मैं इधर से डायरेक्ट एक्सप्रेशन से लिख देता हूँ, जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर आर भी कॉमन हो सकता है, तो अंदर क्या बचा, 2g, राइट? 2g ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, 2g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, राइट? ठीक है, ये आपका g डैश की वैल्यू आई। नाउ टेल मी वन थिंग, सो दैट डायग्राम वेयर आई मेड द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, क्विकली, यहाँ पे पार्टिकल था, ये रेडियस था, ये इसका सेंटर था, ठीक है, ठीक है, ये p पार्टिकल था, ये थीटा था। नाउ दिस g डैश की जो, ओके, दिस इज द रिजल्टेंट, राइट? तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, किसका किसका, mg और m ओमेगा स्क्वायर, mg इधर लग रहा था, m ओमेगा स्क्वायर r इधर, इसका रिजल्टेंट कहीं इधर लगेगा, तो इस रिजल्टेंट की लोकेशन अगर आप देखोगे तो
लेट्स जस्ट एज्यूम इट इज अल्फा, ठीक है। तो tan अल्फा भी निकाल सकते हो। tan अल्फा क्या हो जाएगा बताओ? वही वो पैरेललोग्राम लॉ लगा लेना यार, ठीक है। मैं डायरेक्ट पैरेललोग्राम लॉ डायरेक्ट नहीं रखता हूँ, हैंग ऑन। सो रिजल्टेंट की वैल्यू पता है आपको r, और ये tan अल्फा, इसका डायग्राम यहाँ बना लो ऐसे, ये ओमेगा स्क्वायर r और इसका रिजल्टेंट इधर, ठीक है, r डैश, ठीक है। ये कितना हो गया अल्फा, और ये mg, ये r। ये करते थे ना इसको एक्सटेंड करके यहाँ से, और ये ऐसे, ठीक है। तो व्हाट वुड बी दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये इरेज कर सकते हैं ना, जी डैश हमें पता है, ठीक है। सही से करते हैं, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, ये mg लग रहा था, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा r, और ये आपका बढ़ा लो इधर, एंड दिस इज अल्फा एंड दिस इज mg, राइट। तो क्या आ जाएगा, एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 प्लस थीटा, ठीक है। और ऑलराइट, सो बेसिकली इसको पीछे बढ़ाओगे, ये अल्फा आ जाएगा, और ये mg है, ये वाला, और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ऐसे रहेगी, ठीक है। तो m ओमेगा स्क्वायर r, नॉट रियली, ओके फाइन। पैरेललोग्राम लॉ लगा के जब आप निकालोगे, अभी आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो लॉन्ग, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द एक्सप्रेशन फ्रॉम द बुक ओनली। सो यू जस्ट राइट m ओमेगा स्क्वायर r sin 90 plus theta, it just you apply the parallelogram law जैसे निकालते हैं। let me know if you cannot do it, okay। mg plus m omega square r cos 90 plus theta, okay। now that's not the main part that I wanted to tell you, you can easily derive it, it's just high school mathematics। so g dash, इसको मैंने कर दिया, okay। now the other balance, दो फोर्स mg और m ओमेगा स्क्वायर r का जो बैलेंस है is g डैश, राइट। सो उसका जो बैलेंस आया वो mg डैश आया, तो वो mg डैश को कौन बैलेंस करेगा, थर्ड फोर्स, राइट। तीन फोर्स लग रहे थे, mg, m ओमेगा स्क्वायर r एंड टेंशन। सो तीनों का बैलेंस, दो का बैलेंस हमारा रिजल्टेंट आया mg डैश, एंड दैट mg डैश इज इक्वल टू t। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा एट द इक्वेटर, यहाँ पे थीटा इज 90, ठीक है, एट इक्वेटर थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। अगर थीटा 90 है तो जी डैश की वैल्यू निकालो यहाँ से, साइन 91, ये आ जाएगा जी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, प्लस 2 ओमेगा टू द पावर 4 r टू द पावर 4, सॉरी r टू द पावर 2, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो जी डैश की वैल्यू अंडर रूट में, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, आर का होल स्क्वायर, देखो जी स्क्वायर माइनस 2ab 2g ओमेगा स्क्वायर आर
plus omega to the power 4 r square. G dash की वैल्यू आई, दिस इज व्हाट द मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो वाज, ओमेगा स्क्वायर r. ठीक है, हाँ ये G dash आ गया राइट. अब व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा एट द पोल्स. पोल्स पे थीटा क्या होगा, ये पूरा थीटा जीरो हो जाएगा राइट. पोल्स पे थीटा जीरो. अगर थीटा जीरो हो गया तो ये वाला टर्म दिस गोज टू जीरो एंड G dash वुड बी व्हाट, G. So basically if you are at the equator you would feel that the weight is mg dash and G dash is this value. और कितना अपरेंट वेट हुआ मल्टीप्लाई करके देख रहे हो यहाँ पे. एट द इक्वेटर सबसे ज्यादा जो वेट लॉस फील होगा या वेट लॉस होगा, फील नहीं होगा, इट मे नॉट फील, यू मे नॉट फील इट, एम जी डैश जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर. कितने का वेट लॉस हुआ, कितने का, एम ओमेगा स्क्वायर आर का. ठीक है, एंड पोल पे वट एवर द वेट एम जी यू सी that is going to be acting at the poles. ठीक है, so every time we take weight mg downwards we are kind of ignoring this value m omega square r. कभी just think about it, calculate omega for earth, calculate radius and then try to find the m omega square r की actual value. Okay, so you will realize that what is the apparent weight. Okay, so this was it. Yeah, thank you so much for watching the video, and you can calculate the direction alpha. If not, I'll tell you in one of my next videos. ठीक है, I'll take some question where force balance, multiple forces are acting and how to calculate direction. You just have to take the component of m omega square r and you will take the component of mg and just apply the sine, cosine or tan rule, perpendicular upon base, like that, nothing else. Okay, so thank you so much for watching the video.